our leaders from Delhi, so I'll speak in English. Here we are joined by Ghulam Ahmed Mir Ji, our AICC General Secretary and in charge of West Bengal. Our PCC President Sri Shubhankar Sharkar. We are also joined by Sri VP Singh Ji, who is in charge of our war room. Our WBPCC General Secretary Sri Ashutosh Chattopadhyay, and we are also joined by my colleague in the media department, Sri Shuman Rai Chaudhary, who is the convener of the media department. Now I'll request for. So I will request our PCC President, Honorable Sri Shubhankar Sharkar, to address the press now. Thank you. নমস্কার নমস্কার আজকে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রেস কনফারেন্স একটাই কারণে। আপনারা জানেন যে আগামী কাল আমরা ঐতিহাসিক ধর্মতলায় রানী রাসমণি রোডে সংবিধান পাঠের আমাদের কর্মসূচি আছে। দুপুর 1টায় সমবেত হব আমরা, 2টোর সময় এই কর্মসূচি শুরু হবে। এটি একটি বিষয়। এবং এসআইআর নিয়ে আপনারা জানেন ইতিমধ্যেই 58,20,000 ওপরে বেশি ভোটারের নাম বাদ গেছে। আগামী দিনে হিয়ারিংয়ের পর এই নাম কিছু ঢুকবে, আরও যে ড্রাফট কপি ভোটার লিস্টের বেরিয়েছে তার থেকেও কিছু নাম বাদ যেতে পারে। তো সামগ্রিকভাবে এ বিষয় একটি বিষয় আজকের। তার সঙ্গে আছে ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় আপনারা জানেন যে ইডির অবৈধভাবে যে মিথ্যে চার্জশিট তৈরি করেছিল তা মহামান্য আদালত খারিজ করে দিয়েছে। এবং মনরেগার নাম পরিবর্তন, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, এ বিষয়েও এই 4টি বিষয় আলোকপাত করবেন আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, এই রাজ্যের অবজারভার গোলাম আহমেদ মীর সাহেব। এবং এখানে উপস্থিত আছেন ওয়ার রুমের চেয়ারম্যান বিপি সিংজি, যিনি আমাদের রাজ্যের আগে অবজারভার ছিলেন এবং এআইসিসি সেক্রেটারি। আমার কলিগ জয়েন্ট সেক্রেটারি আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় আছেন, মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান মিতা চক্রবর্তী আছেন, মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের কনভেনার সুমন রায়চৌধুরী আছে, এবং অজিতেশ পান্ডে মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের কোঅর্ডিনেটর এখানে উপস্থিত আছে, ভাই জুনেদও আছে। আমি এবার এই 4টি বিষয়ের ওপরে আলোকপাত করার জন্য সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ওয়ার্কিং কমিটির মেম্বার, প্রাক্তন মন্ত্রী জম্মু কাশ্মীরের, বর্তমান পরিষদীয় দলনেতা বিধায়ক গোলাম মোহাম্মদ মীর, তিনি আপনাদের কাছে সম্বোধন করবেন। और थैंक यू मीडिया पर्सन। जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया कि सबसे महत्वपूर्ण वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कल 20 दिसंबर को जो कलकत्ता में संविधान को लेकर के एक सर्वधर्म सभा हो रही है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह का देश में वातावरण और पार्लियामेंट के अंदर भी आपने ह्यू एंड क्राई सुना कई विषयों को लेकर, और यहाँ वेस्ट बंगाल में भी आने वाले चुनाव को देखकर
अलग अलग पार्टियां एक एक टुकड़ी लेकर अपना वोट बटोरना चाहती है। इन सारी चीज़ों के पस मंज़र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर जो हमारी विरासत है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस पार्टी की बुनियाद है, और उसके मुताबिक एक नई दिशा यहाँ इस वातावरण को ठीक करने के लिए, देश में एक सिग्नल देने के लिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर अलग अलग तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं, बल्कि एक कोशिश तो की गई थी कि 2024 के चुनाव में रूलिंग पार्टी ने देश को आह्वान किया था कि हमें 400 सीटें चाहिए। तो वो 400 सीटें हासिल करने के पीछे शायद मकसद यही था कि कैसे भी हमारे पूर्वजों का, हमारे फोरफादर्स का जो दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, जो पूरे दुनिया में माना जाता है, जिसकी तारीफ़ें होती है, और इतना डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया को मिला है, उसको बदलने के खातिर वो बड़ा मैंडेट मांगने की कोशिश की गई। मगर हम शुक्रिया करते हैं देश के वोटर्स को जिन्होंने इस सिग्नल को, और शुक्रिया करते हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को, जिनने 2024 के इस जनरल चुनाव में जब ये फीलिंग्स आ गई कि ये 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं, स्पेशली 400, तो उसके पीछे उनने जब डिकोड किया भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कि ये 400 सीटें हम इसलिए मांग रहे हैं कि हम अगर 400 सीटें आएंगी तो हम संविधान को बदलना चाहते हैं। तो वो फीलिंग लेकर राहुल गांधी जी ने पूरे देश में कैंपेन चलाई कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मतलब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ है, हमारे पसमानदा लोगों को, गरीब लोगों को, शेड्यूल कास्ट लोगों को, शेड्यूल ट्राइब लोगों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, वो भाजपा वो गारंटीज, वो प्रोटेक्शंस ख़त्म करना चाहते हैं। और देश ने समझा और देश ने रिजल्ट दिया कि 400 तो दूर की बात है, 330 भी नहीं दिए, 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। और उसके बाद ये एंगर बीजेपी के मन में कि हम वो काम नहीं कर पाए और कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए हमें संख्या नहीं मिली, इसलिए वो अलग अलग इंग्रेडिएंट करके आप देख रहे हैं एक एक कदम जो वो उठा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही छेड़छाड़, कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं को ही टारगेट करके वो अपना अमल आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में वेस्ट बंगाल कांग्रेस ने एक अच्छा लीड लिया है कि पूरे वेस्ट बंगाल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक नई दिशा देने के लिए कि जो एक्चुअल मकसद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जिसमें सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हर सोच के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अपना प्रोटेक्शन भी दिया है और उनको अपना एक तहफ़्फ़ुज़ भी दिया है और हर तरीके का रहने का, सहने का सब उसमें दिया है, जिस पर आज अटैक्स हो रहे हैं। तो वो एक सिंबॉलिक कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ कलकत्ता में होगा। हम डेफिनेटली चाहेंगे कि वो एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा इम्पैक्ट, बंगाल एजुकेटेड लोगों का माना जाता है, इसकी हिस्ट्री रिच है, तो यहाँ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ से रहे हैं। तो इसलिए इस सरजमीन से एक पॉजिटिव मैसेज पूरे देश के लिए जाए, ये हमें उम्मीद है कल के उस इवेंट को लेकर। इसी तरह से दूसरा जो एक्सरसाइज यहाँ पर चल रहा है SIR नाम से, और उसका ड्राफ्ट रोल जो बाहर आया है, जिसमें 58,20,000 के आसपास वोटर ड्रॉप फिलहाल दिखाए गए, और उस 58,20,000 वोटरों को जो डिवीजन किया गया, तो उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो
इसमें ड्रॉप लिस्ट में है वो है डिसीज लोग, जो डेथ्स उसमें बताए गए। उसके बाद जो माइग्रेंट उसमें दिखाए, जो अपनी जगह से छोड़ करके कहीं और बस गए। और फिर तीसरा कोई अदर्स में उसमें जो फिगर लिखा है जो आपके पास है और हम प्रेस नोट में भी दे रहे हैं आपको। तो इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब हम कल तक इलेक्शन कमीशन की नाकामी पर सवाल खड़ा करते थे, आप लोगों के मन में और देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे थे कि कांग्रेस क्या कर रही है, ये खाली इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर रही है। तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन ने खुद अपनी नाकामी का सबूत खुद पेश किया। जिस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है साल में 2 बार इलेक्टोरल रिविजन होते हैं, जो रूटीन वर्क है, चाहे किसी स्टेट में इलेक्शन हो या ना हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या ना हो, असेंबली का हो या ना हो, पंचायत का हो या ना हो, लोकल बॉडीज का हो या ना हो, साल में 2 बार हर इलेक्टोरल लिस्ट का रिवीजन होता है, जो BLO और इलेक्शन डिपार्टमेंट करता है। अब ये कमाल देख लीजिए कि लगातार साल में 2 बार रिवीजन करने के बावजूद, मीन्स अगर कोई अप्रैल से पहले कोई डेथ हुई है तो अप्रैल के रिवीजन में वो डिलीट होना चाहिए। ये इनहेरिटेड ड्यूटी है BLOs की और इलेक्शन डिपार्टमेंट। अगर मई से लेकर अक्टूबर तक कोई डेथ हुआ है वोटर, तो उसको अक्टूबर के रिवीजन में उसको मेंशन करना है कि ही इज नो मोर। इतने सालों से साल में 2-2 बार रिवीजन के बावजूद आज जो इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल का दिखा रहा है कि करीब 22 लाख वोट जो उसमें दिखा रहा है, शायद 22 लाख के आसपास, 24 lakhs दिखा रहा है डिसीज डेथ, एक बड़ा चंक। ये अपने आप में सवाल पैदा खड़ा करता है कि अगर इस SIR को नहीं करते तो इसका मतलब ये 22 लाख वोट तो एग्जिस्ट कर रहे थे। अगर कर रहे हैं तो ये किसकी फेलियर है? ये ना तो कांग्रेस पार्टी का फेलियर है, ना ही किसी वेस्ट बंगाल के आम साधारण शहरी का कोई फेलियर है। ये फेलियर अगर है ये इलेक्शन कमीशन का है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया वापस हम इलेक्शन कमीशन पर डाल रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन नाकारा है, वो एक बायस इंस्टीट्यूशन है, तो उसका ये सबसे बड़ा जो देश में आप दिखा सकते हो कि 24 लाख वोट वेस्ट बंगाल के लिस्ट में डिसीज दिखा रहा है, जो उन्हीं की एक्सरसाइज थी। अगर उन्हें एक्सरसाइज पूरी की होती तो शायद आज दिसंबर का महीना है और अक्टूबर में जो रिवीजन हुआ होगा, अगर वहाँ तक अपना काम किया होता तो आज आपको हार्डली 10,000 लोग मिलते, 24 लाख के बजाय 1,000-5,000 लोग मिलते। दैट मीन्स उन्होंने अपना काम नहीं किया है, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन पर फिगर है। ये भी चोरी का एक बहुत बड़ा जीता जागता प्रूफ है। उसी तरह से दूसरा इंग्रेडिएंट जो उसमें दिखाया है कि जो माइग्रेशन में जो अपने घरों में नहीं मिले, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे देश में हर प्रदेश में कुछ मुस्तकिल काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, बिजनेसमैन है या एवरेज टाइप के लोग हैं। बाकी ज़्यादातर 20-30% आबादी एक प्रदेश से दूसरी प्रदेश में मजदूरी के लिए जाते हैं। और ये स्वाभाविक है, ये पॉसिबल है कि वेस्ट बंगाल के लोग हाई स्किल्ड माने जाते हैं, इवन इफ लेबरर्स भी है। हम देखते हैं देश के बाकी कोनों में जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, अगर टनल कहीं बन रहा हो उसमें वेस्ट बंगाल के लोग इन्वॉल्व हैं। अगर कोई हाई टाइप कोई हाईटेक कोई ब्रिज बनना हो तो उसमें वेस्ट बंगाल के लोग, अगर कोई हैवी मशीनरी कहीं यूज़ होनी हो उसमें वेस्ट बंगाल के लोग हैं। तो जब भगवान ने इनको अक्ल दी है, सोच दिया है, स्किल दिया है, तो ये तो देश में पूरे फैले हुए। अब हमने जो सवाल खड़ा किया था कि SIR के खिलाफ कोई नहीं है, SIR पहले भी होता है, मगर जिस तरह से हाश फाश में और एक लिमिटेड टाइम दे दिया है जनता को अपने आप को प्रूव करने के लिए, आप प्रूव करो, पहले आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो और फिर आप वोटर हो। पहले क्या होता था, ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती थी, पॉलिटिकल पार्टीज की ड्यूटी होती थी
to make aware to the people and make them to become the voter. बट आज इलेक्शन कमीशन ने ये सारा बोझ उठा करके आम वोटर पर छोड़ दिया। ये दोनों जिम्मेदारियां तुम्हारी है, तुम प्रूव करो तुम सिटीजन हो, तुम प्रूव करो तुम वोटर हो। अब मिसाल के तौर पर मैं बता दूं, वेस्ट बंगाल का एक फैमिली किसी भी यहाँ के किसी शहर से या गांव से उठ के 4 आदमी 5 आदमी वो वोटर हैं, वो जाकर के इस वक्त केरला में किसी ब्रिज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, 2 बच्चे उनके साथ, वो भी साथ में। अब आपने इतना लिमिटेड टाइम दिया उनको कि अगर उनको आना भी है वापस अपने गांव में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, तो उस परिवार को कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा लगेगा कि वो उस टाइम के अंदर यहाँ आ जाए और अपने आप को शो करे, अपना फार्म बने। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा इलेक्शन कमीशन उसको वो पैसा देगा मजदूर आदमी को? तो इसलिए बहुत सारे परिवार हैं जिन्होंने प्रेफर किया नॉट टू कम, हम जाएंगे नहीं, क्योंकि कौन मुझे ये 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा देगा और फिर मेरा काम यहाँ जाए होगा। इस तरह के बहुत सारे परिवार हैं कि जो इसमें अब जोड़ खाएंगे। हमारा इसमें कहने का मतलब है कि अगर टाइम सेक्शन दिया होता और जितनी फिगर ये आज भी दिखा रहे हैं, अब अगर रिवीजन जो होगा, जो लोगों को अब अप्लाई करना है, जिनको अपनी सर्टिफिकेट देनी है, तो डेफिनेटली अगर ये डेट्स को छोड़ के आप देखेंगे तो बाकी ये आज के दिन पर भी कोई 30 लाख का फिगर है। और उस 30 लाख में अगर लोग अब वापस अपना प्रूफ देंगे कि हम जिंदा हैं और हम वापस सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो ये 30 लाख का फिगर वापस 15 लाख 5 लाख पर आ सकता है। मगर जो हवा बनाई गई थी भाजपा द्वारा कि वेस्ट बंगाल में जबरदस्त करोड़ों की तादाद में घुसपैठियां, एक वर्ड वो यूज करते आए हैं लगातार चुनाव में, झारखंड में किया, बिहार में किया और अब बंगाल में कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये 58 लाख में ये 22 लाख निकाल के बाकी लोगों में कितना उन्होंने अभी तक घुसपैठियां बताया? और जब ये फर्दर वेरिफिकेशन होगा, जो फाइनल रोल होगा, आपके माध्यम से हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर, होम मिनिस्ट्री पर, भाजपा पर ये सवाल रहेगा कि हमें ज़रूर बता देना कि वेस्ट बंगाल में कितने लोग इसमें घुसपैठिए निकले जो आपने इनडायरेक्ट सिटीजनशिप टेस्ट इसमें डाला है। और अगर है भी, अगर निकलेगा भी कोई जो सॉलिड प्रूफ नहीं दे पाएगा, वो हमारे बांग्लादेश से आए हुए वहाँ के माइनॉरिटी के लोग जो आज भी ट्रबल में हैं, जिनको आज भी बांग्लादेश से भी निकाला जा रहा है, और अगर वो नियर बाई स्टेट, नियर बाई कंट्री हिंदुस्तान में शय नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे? ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ है, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, जबकि उसमें जो वेल ऑफ है वो MP भी बने हैं, वो MLA भी बने हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं, मगर अगर ये चोट पड़ेगा ज़्यादा तो उन पर पड़ेगा। तो लिहाजा ये एक्सरसाइज को लेकर कई सारे सवाल हैं जो डेथ्स दिखाए, अभी भी इनपुट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको डिसीज दिखाया है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, हमको रिपोर्ट कर रहे हैं, हम कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए कितने लोग हैं जो जिंदा है, जिनको इलेक्शन कमीशन आज भी डिसीज में दिखा रहे हैं। तो इसलिए हमारी फाइनल यही डिमांड रहेगी, पहले भी हमने की, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यही रिक्वेस्ट किया था कि इसको थोड़ा टाइम एक्सटेंशन कर लीजिए ताकि हर आदमी ये फैसिलिटेट कर सके और अपना वोटर को दर्ज कर सके। आज भी हम यही कहेंगे, अभी भी इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, सफिशिएंट टाइम वोटर को दिया जाए, गरीब गुरबा लोगों को दिया जाए, और जो इसमें ये सारी फॉर्मेलिटीज लगी इसको ईज आउट करे। बहुत लोग हैं जिनका जद अजदाद, जो दादे परदादे कभी स्कूल गए नहीं होंगे, तो जब स्कूल नहीं गए होंगे तो उनका वो सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, वो 10th की सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। हमारा सुझाव होगा अभी भी इलेक्शन कमीशन को, ये जितनी चीज़ें आपने मांगी हैं इसमें अगर आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, वो है हर गांव शहर में ये होता है, पंच होता है, सरपंच होता है या नंबरदार चौकीदार होता है, तो अगर उनको इसमें ऐड करें कि वो अपनी सर्टिफिकेट देकर
एक वोटर को फैसिलिटेट करें, वो अपना प्रूफ दे सके, मुझे लगता है वो ज़्यादा वायबल होगा। क्योंकि 50-50, 60 साल कौन कहाँ रहता है, वो 5 सरपंच और ये जो नंबरदार चौकीदार वो दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जिसके पास राशन कार्ड ही नहीं होगा यहाँ पर, जिसके पास बिजली कनेक्शन ही नहीं होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट ही नहीं होगा, वो हम उसमें चाहते हैं कि उसमें वो ऐड करे और थोड़ा टाइम एक्सटेंड करे। और जो लोग इसमें मारे गए, चाहे वो BLOs हैं या चाहे आम वोटर है शौक में, और उनकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, उनको कंपनसेट करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। वो मकरू नहीं डिक्लेयर होनी चाहिए। आखिरकार वो स्ट्रेस की वजह से, वो आपकी इतनी हैवी लोडिंग की वजह से जो बेचारे नहीं एफर्ट कर पाए, जो 39 या 49 डेथ्स यहाँ पर हुई है, उसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को लेनी चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उनके परिवारों को कंपनसेट करना चाहिए जिस मोमेंट में जान गंवाया। इसी तरह से मनरेगा का एक हमारा इशू है जिसका जिक्र शुभांकर जी ने किया है। जो मैंने पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात थी, जब वो मैंडेट नहीं मिला, जो उनको मैंडेट मिलने पर करना था, अब उनको लगा ये 5 साल का मामला है फिर देखेंगे, तो तब तक वो एक एक एलिमेंट फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड एक एक चीज़ जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ मिला है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिला है, उन चीज़ों को वो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन छेड़छाड़ कर रहे हैं। और वर्ष से वर्ष इस मनरेगा के जरिए कितना मतलब उनके ये भाजपा RSS के मन में कितना एक वो है कि महात्मा गांधी के नाम तक वो अब तस्लीम करने के लिए तैयार है। जो फादर ऑफ द नेशन माना जाता है, डिक्लेयर्ड है, पूरा दुनिया मानता है, उस फादर ऑफ द नेशन का नाम काटने पर भी, नाम काट के उन्होंने अपने डिजाइन को पेश किया। नंबर 1 वो इस मनरेगा को दे। नंबर 2, ये पूरी दुनिया में माना गया था कि पूरी दुनिया एडवांस कंट्रीज में भी गरीब लोगों के लिए रोजगार मैसर करने के लिए भी पूरी दुनिया में मनरेगा जैसी कोई भी स्कीम किसी कंट्री में नहीं थी जो लोगों को फीड करती थी जिस तरह का भारत देश में हुआ था 2004 में। मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की क़यादत में ये प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ था और जिसका लाभ करोड़ों लोगों ने, करोड़ों गरीब लोगों ने, बहुत सारे स्टेट्स में जहां पलायन होता था, कुछ हद तक वो पलायन रुका और कुछ हद तक उनके घर परिवार आबाद हुए। और उस प्रोग्राम को वो भी इनके मन में एक था कि कैसे और किस वक्त कौन सा टाइम आए जब हम इस मनरेगा को हम एबालिश करें, महात्मा गांधी को एबालिश करें और उस प्रोग्राम के ज़रिए देश के गरीब गुरबाओं को रोजी रोटी छीन ले। और उसका कदम उन्होंने अब पिछले 3 दिन से पार्लियामेंट में उठाया और जिसके तहत ये 90-10 रेशियो की स्कीम थी, जिसमें 90% गारंटीड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर हालत में फंडिंग करेगा इसको, और 10% सम यूटीज में रखा गया था। गरीब स्टेटों में तो 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती थी और उसको काट करके अब एवरेज 60-40 करके, और वो 60-40 करके जो 40% मान लीजिए 10,000 करोड़ बंगाल में खर्च होना था और अब 4,000 करोड़ बंगाल सरकार को देना होगा, 6,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। तो ये 4,000 करोड़ जो वेस्ट बंगाल जैसे प्रदेश को या और गरीब प्रदेशों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, वो दूसरे चीज़ों पर असर करेगा और इसलिए वो एफर्ट ही नहीं कर पाएंगे वो 40%, जिसकी वजह से उस मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, उसको मटीरियल कास्ट नहीं मिलेगा, इसलिए अब ये काम करने वाले ही सामने नहीं आएंगे। तो ये एक ज़बरदस्त चोट देश के गरीब गुरबाओं के लिए मोदी सरकार ने और उनके मिनिस्टर ने जिस तरह का ये अमेंडेड इसमें मनरेगा में ये अमेंडमेंट लाई है, उससे करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल। यहाँ भी गरीब लोग थे, यहाँ भी अभी गांव देहात में ये प्रोग्राम चल रहा था, वो नुकसान होगा। तो
और चौथा चीज जो हमने आज के इसमें 24 तारीख में राजभवन प्रदर्शन है मनरेगा लेके। हाँ नहीं, अभी चौथा जो हमारा चीज रहा है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड, जो आज की इस प्रेस वार्ता में जरूरी आपसे बात करनी है। जैसे मैंने फिर कहा कि जो भी फ्रीडम मूवमेंट में कंट्रीब्यूशन थी, जिनका एक अपना रोल रहा है, चाहे फ्रीडम फाइटर्स हैं या फ्रीडम फाइटिंग को सपोर्ट करने वाला जो मात्र एक देश का अकेला पेपर नेशनल हेराल्ड, जिसने उस वक्त देश को यूनाइट करने में, एक मैसेजिंग देने में एक अहम भूमिका की, और ताकि हम अंग्रेज़ों को भगा सकें और देश को आज़ाद कर सकें, वो अकेला और वाहिद पेपर है दैट इज नेशनल हेराल्ड, जिसने अपना रोल प्ले किया है। और उसके बाद से इन लोगों को ये परेशानी है कि ये सारे जो प्रूफ्स है, जो उस फ्रीडम मूवमेंट में योगदान करने वाले, चाहे वो व्यक्ति हैं, चाहे वो लीडर है, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, चाहे महात्मा गांधी जी हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हैं, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन को वो अलग अलग तरीके से टारगेट करके इनको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से नेशनल हेराल्ड को टारगेट करने के लिए और गांधी परिवार को टारगेट पिछले 11-12 साल से किया, और उस बारे में जितनी स्टोरीज आपके पास हैं वो हैं। और आपने अभी 4 दिन पहले देखा कि जिस तरह से ईडी मतलब एक लोकल ट्रायल जज के पास गए हैं, तो जज ने कहा कि आपका जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, दिस इज नॉट इवन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, इसको तो दूर से देखने के लायक भी नहीं है, तो केस तो दूर की बात है। और 11 साल से इसी आड़ में किस तरह से 80 घंटे सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, अदर लीडर्स को 80 घंटे इंट्रोगेशन करवाया, और बिना एफआईआर ही इलाज नहीं हुआ। ये सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स और वेंडाटा पॉलिटिक्स के तहत में सिर्फ देश के नजरों के सामने कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, और खासकर नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने की 11 साल की साजिश, जिस पर अभी रिसेंटली 4 दिन पहले कोर्ट ने एक टिप्पणी की। अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई डिसीजन दिया, मगर जिस तरह का कोर्ट ने कहा कि मटीरियल नॉट इवन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और उसकी जो जज की कमेंट्स है, मुझे भरोसा है कि हमने उसको शॉर्ट लिस्ट किया होगा, वो भी आपको सर्कुलेट किया जाएगा कि जो जज ने कहा है उससे एक बहुत बड़ा धचका, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप इस जज के स्टेटमेंट या डायरेक्शन कहने के बाद में भाजपा को सीधे नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, उनके स्टलवार्ड्स को देशव्यापी माफ़ी मांगनी चाहिए गांधी परिवार से, कांग्रेस पार्टी से, कि हमने मतलब आपको जानबूझकर टारगेट किया है, जानबूझकर आपको आपकी इमेज टार्निश करने की कोशिश की है। और जिस तरह का स्टेटमेंट जज का आया है उसको देखकर हम माफ़ी मांगते हैं। हम तो ज़रूर चाहेंगे, आज देश भर में चारों तरफ यही आवाज़ है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो इमेज डैमेज करने की कोशिश की, हालांकि ये हिम्मत है हमारे नेता राहुल गांधी जी की, उसको पता है देश में उनने अलग अलग जगह पर दुनिया भर के केसेस करवाए, मगर वो औलाद का आदमी है, वो जानता है कि इनकी साजिशें क्या हो सकती है, वो जानता है कि इनकी पॉलिसीज़ क्या है, वो किसी भी तरीके से भी डगमगाने वाले नहीं, ना कांग्रेस पार्टी झुकने वाली है, और उसको हम डट के ऑन ग्राउंड लड़ते आए हैं, और आगे भी उन चीज़ों के बारे में इनके साथ लड़ते रहेंगे। ये हमारा इसमें नेशनल हेराल्ड का मामला था। हाँ, 24 को क्या है? 24 को हमारा राजभवन घेराव मनरेगा लेके। अच्छा, हाँ, उसी सिलसिले में चूंकि देश भर में सारी जगह वर्कर्स और आम जनता और पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया है कि ये तो सीधा नाइंसाफ़ी है पूरे देशवासियों के साथ में, तो वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी 24 दिसंबर को
राजभवन घेराव की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनके थ्रू हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैसेज भेजें कि ये आपने गरीबों के खिलाफ वाला काम किया है, ये मजदूरों के खिलाफ वाला काम किया है। यही तो एक सहारा था। अगर कोविड में देखा जाए, अगर देश बचाया किसी चीज़ ने तो इसी मनरेगा ने बचाया। जब सारे रास्ते बंद, जब सारे जरिए आमदनी बंद, जब लोगों की रोटी रोजी तक बंद हुई थी, और कांग्रेस पार्टी के ये दो प्रोग्राम थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट और ये मनरेगा। इन्हीं दो प्रोग्रामों ने देश को, देश के गरीबों को मुसीबत के टाइम पर बचाया था, और उन्हीं दोनों चीज़ों के साथ ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी तस्लीम नहीं करती है। इसका जंग हम जारी रखेंगे, और जब मौका आएगा हम भरोसा भी दिलाएंगे अपने मजदूरों को। जब देश मौका देगा हम इससे बेहतर तरीके से मनरेगा को वापस लाएंगे, और फूड सिक्योरिटी एक्ट को भी और बेहतर इम्प्रूव करेंगे। ये हमारा आश्वासन अपने गरीब जनता के लिए। ठीक। एक सवाल था, बांग्लादेश के बारे में आप कह रहे थे, तो बांग्लादेश का अभी जो स्थिति है और यहाँ का जो बीजेपी का पार्टी वो भी बोल रहा है, बांग्लादेश का जो स्थिति है वहाँ पे सेम स्थिति वेस्ट बंगाल में भी है। क्या है इसको लेके आप? जैसे आप बताएं क्या स्थिति क्या है? स्थिति क्या है वो तो मतलब वहाँ पे जो घटना घट रहे हैं वैसे ही सेम घटना यहाँ पे भी हो रहा है। बीजेपी का कहना है। अब ये तो सीधी पहली जिम्मेदारी तो रहती है कि जिनके हाथ में बागडोर देश ने दी। अगर बांग्लादेश में कोई मामला हमारे लोगों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ होता है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, और पड़ोसी मुल्क है हमारा, उनके साथ में ये टेकअप करना चाहिए कि जो वहाँ पर अन्याय हो रहा है, जो वहाँ पर ज्यादती हो रही है, उसको तो स्ट्रांगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए। हमने थोड़ी ना मतलब हाथ बंद कर रखे हैं। हमारा फर्ज बनता है हमारे आस पड़ोस में अगर कोई ज्यादती हो रही है उस पर आवाज़ उठाएं। उसी तरह से अगर वेस्ट बंगाल में कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, यहाँ की सरकार तो वैसे भी तमाम फ्रंट्स पर फेलियर तो हो ही रही है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर में भी फेल है तो वो तो यहाँ की जनता आने वाले 4 महीने में फैसला लेगी। मीर साहब, 3-4 महीने के बाद इलेक्शन होने वाला है। कांग्रेस पार्टी किसी के साथ गठबंधन करने के बारे में विचार कर रही है? मैं लगातार इस बात को कह चुका हूं कि ये जो टीम आप यहाँ देख रहे हैं या ऊपर नीचे जो हम 4 घंटे ऊपर थे, हमारी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को अपने बलबूते पर खड़ा करें। थोड़ी कमजोरियां रही हैं, हम ये नहीं कह रहे। हम बीजेपी के जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी सोच है, या जो उनके इंतज़ामात है, या टीएमसी ने जितना कमाई किया है 15 साल से और जिस तरह की नीति वो चला रहे हैं, इन दोनों के बीच का रास्ता हम निकाल रहे हैं। क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मिले भी लग रहे हैं। बीजेपी एजेंडा दे रही है टू बेनिफिट टीएमसी, टीएमसी जो एजेंडा दे रही है टू बेनिफिट बीजेपी। वो बीच के जो सेकुलर पार्टीज है उनको अबालिश करने की जो उनकी सोच है, उस अबालिश करने के खिलाफ हम लड़ेंगे। बंगाल की जनता के सामने अपना एजेंडा रखेंगे, अपने आप को स्ट्रांग तरीके से। कोशिश हमारी है कि हम सीधे 294 सीटों पर अपना उम्मीदवारी खड़ा करें। बोलो। আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী আসছে, মিডিয়ার একটা সভার ব্যাপার আছে যে ভূপালের নাগরিকত্ব পাশাপাশি মোহন ভাগবত কালকে থাকছে। কালকে প্রথম পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে এবং ভারতবর্ষে এখনকার বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি হিন্দু, আমি গীতা পড়ব, বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত পড়ব, আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, আমি কোরআন পড়ব, আমি বাইবেল পড়ব। এই ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ার ক্ষেত্রে কোথাও কোনো বাধা নেই। কিন্তু আমি ভারতবাসী হিসেবে
আমি যদি দেখি ভারতবর্ষের ধর্মগ্রন্থ পড়ব, তার নাম হচ্ছে ভারতবর্ষের সংবিধান। এই সংবিধানটাই সমস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় বুকস, রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশন যারা বহু প্রাচীন, সেগুলোকে রক্ষা করে এই বইটা। এই বইটা কাল আমরা এই কারণেই পাঠ করছি, যাতে প্রধানমন্ত্রী, যাতে মোহন ভাগবত তারা এইটুকু বুঝতে পারেন এই বইটাই সেই অধিকার স্বাধীনতা মানুষকে দেয়, তার কথা বলার অধিকার স্বাধীনতা, যেটা প্রধানমন্ত্রীর দেশ চালানোর ক্ষেত্রে তিনি লোককে দিচ্ছেন না। বাক স্বাধীনতা নেই, খাদ্যের স্বাধীনতা নেই, পোশাকের স্বাধীনতা নেই। ঠিক তেমনিভাবে মোহন ভাগবত তিনি সত্যকে কোনো সময় প্রকাশ করার কথা বলছেন না, সত্যকে চাপা দেওয়ার কথা বলছেন। রামলীলা ময়দান থেকে রাহুল গান্ধী বলেছিলেন সত্যকে চাপা দেওয়া যাবে না। আজকে এআইসিসির পক্ষ থেকে আপনারা জানেন যে ন্যাশনাল হেরাল্ড এবং মনরেগা নিয়ে সারা ভারতবর্ষে প্রেস কনফারেন্স হচ্ছে। এআইসিসির দুইজন নেতা আমাদের সামনে তারা প্রেস কনফারেন্স করলেন। আর সংবিধান পাঠ এটাই একজন মানুষকে বুঝিয়ে দেয় যে আমার বাবার প্রতি কী কর্তব্য, আমার প্রতিবেশীর প্রতি কী, রাস্তায় চলার সময় আমার সামনের মানুষটার প্রতি আমার কি কর্তব্য, কি দায়িত্ব, কি অথরিটি, কি লাইবিলিটি। ঠিক তেমনি আমার স্ত্রীর প্রতি, বউর প্রতি কি দায়িত্ব, এবং স্ত্রী বলতে পারেন তার হাজবেন্ডের প্রতি কি দায়িত্ব, যেটা ভারতবর্ষে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকেই দেখতে পাইনি। তাই আমরা 2024-এ আম্বেদকরের জন্মদিনের দিন প্রদেশ কংগ্রেস ডিমান্ড করেছে যে ক্লাস 5 থেকে কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসেবে, আবশ্যিক সাবজেক্ট হিসেবে সংবিধানকে পড়াতে হবে, যাতে ডিউটি, রেসপন্সিবিলিটি, লাইবিলিটি, অথরিটি একটা বাচ্চা ছোটবেলা থেকে বুঝতে পারে। তাহলে এই গ্রস মিস্টেক, যেটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পার্লামেন্টের ভেতরে যে আনপার্লামেন্টারি কথা বলছেন, গালি, যেগুলো আমরা গালি দিই, এগুলো আর ঘটবে না। যারা বিধায়ক, এমপি, তারা এই ধরনের আনপার্লামেন্টারি কথা বলবেন না। সেই কারণেই এই সংবিধান পাঠ। অতএব প্রধানমন্ত্রী কাল আসছেন, তাকে আমরা বলবো দরকার হলে নদিয়ার কোনো আমাদের কংগ্রেসীরা তার হাতে একটা সংবিধান পাঠিয়ে দেবে। আর মোহন ভাগবতজিকেও বলবো সব পাঠের আগে সংবিধান পাঠ করে সমস্ত পাঠ করান, আর সংবিধান দিয়ে শেষ করান। তার কারণ যারা 52 বছর পতাকা তোলেননি, তাদের রাষ্ট্রীয় হচ্ছে কার্যালয় 52 বছর, আর যারা তুলতে গেছিলেন তাদের 3 জন, তাদের জেল হয়ে গেছিল। তো সেই দলের লোক যখন বাংলায় আসে, বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতি তাদের গ্রহণ করে না। এ বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বাংলা। বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি, এ তো কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য উত্তর দেওয়া তাদেরই দরকার। তার কারণ যে ডিপ্লোমেসি, যে কূটনৈতিক বাতাবরণ তৈরি করা দরকার। কংগ্রেস থাকলে ভারতবর্ষের প্রতিবেশী যে জায়গাগুলো, প্রতিবেশী যে রাষ্ট্র, তারা ঠিক ভালো থাকে। আরে প্রতিবেশী রাষ্ট্র তো আর ফুলের টব নয় যে যখন ইচ্ছে জানলার এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সরিয়ে দিলাম, সোফা কাম বেড নয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ওখানেই থাকবে, জিওগ্রাফিক্যালি তাদের ট্রান্সফার আপনি করতে পারবেন না, সম্পর্ক ভালো করতে হবে। এবং বিজেপি কোনোভাবেই করবে না যতক্ষণ না 2026 পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ভোট না শেষ হচ্ছে। তার কারণ সংকীর্ণ ধর্মীয় মেরুকরণ করতে চান। এখানে মুসলমানরা যদি আক্রান্ত হয়, বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত হলে কংগ্রেসই প্রথম পশ্চিমবাংলায়, বাংলাদেশ হাই কমিশনার পর্যন্ত যে আমাদের পাকসার কাছে আছে, সেখান পর্যন্ত আমরাই মিছিল করে গেছিলাম, অন্যরা কেউ যায়নি। আমরা বলেছিলাম যে যারা হচ্ছে মাইনরিটিটার কোনো ব্যাখ্যা হয় না। তার কারণ মুসলমান যেখানে মাইনরিটি, আবার মুসলমান এরিয়ায় হিন্দু সেখানে মাইনরিটি। অতএব মাইনরিটিদের দেখার দায়িত্ব নীতিগত প্রশ্নে মেজরিটিদের। এভাবেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী আর জওহরলাল নেহরু
তাদের চিন্তা ছিল, এবং সেই কারণেই তো এই সংবিধান। আম্বেদকরজি যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার কারণ তিনি কংগ্রেসের সাপোর্টার ছিলেন না, কিন্তু কেঁদে ফেলেছিলেন যেদিন তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলেছিল কংগ্রেসের নেতৃত্ব, যে আপনি নেতৃত্ব দেবেন। সেই উদারতা কংগ্রেসের আছে বলে বহুত্ববাদের মধ্যে দিয়ে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কনসেপ্ট এখনো আছে। এই বহুত্ববাদকে মনুবাদী চিন্তার মধ্যে দিয়ে যারা ভাগ করতে চান তারাই কাল বাংলায় আসছেন, স্বাগত। একদিকে সংবিধান পাঠ, একদিকে মোহন ভাগবতের মনুবাদী চিন্তাধারা, যেতেকে দেখা যাবে। একদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, একদিকে সংবিধান পাঠ, একদিকে শ্যামাপ্রসাদ, একদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, একদিকে মোদী, তিনি ভগবানের অবতার, বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট নন। আর একদিকে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, যিনি প্রতিনিয়ত বলেছেন আমি ভগবান নই। দিস ইজ দি কনফ্লিক্ট। সেই কারণেই তো সংবিধান পাঠ। কেন্দ্রীয় সরকার যখন মহাত্মা গান্ধীর নাম কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বাদ দিচ্ছে, হ্যাঁ। রাজ্যে তখন মুখ্যমন্ত্রী গান্ধীজির নামে প্রকল্প চালু করছে। এই উদ্যোগকে কিভাবে স্বাগত জানাই, কিন্তু ওই শ্রী আগে বা পিছে নয়। মহাত্মা কথাটা কে বলেছিলেন? ও ফাদার অব দি নেশন কে বলেছিলেন? সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তো তার আগে পিছে ওই যাকে বাপু বলে জানি, যাকে আমরা ফাদার বলে জানি, সারা বিশ্ব জানে, তার আগে পিছে শ্রী, তার আগে মিস্টার, এসব লাগাবার কি কোনো দরকার আছে? কারুরই দরকার নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একটা প্রতীক, একটা আলো, অন্ধকার থেকে আলোকে যাওয়ার একটা রাস্তার নাম। বাংলাদেশ নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। এটা তো স্বাভাবিক। এতদিন দেননি কেন? কারণ উনি তো বিজেপি ছোট থেকে বড় নেতার পেছনে দেখবেন 10 জন করে সেন্ট্রাল ফোর্স, আর রাজ্যে ছোট থেকে বড় নেতার পেছনে দেখবেন স্টেট ফোর্স। আমি শুভঙ্কর সরকার, প্রদেশ সভাপতি, আমার কোনো পেছনে সামনে কোনো ফোর্স নেই। কেন বলুন তো? এ কি আতঙ্কবাদীর জায়গা নাকি? কাশ্মীরের কেউ হলে তার পেছনে থাকতে পারে, কারণ প্রত্যেক দিন RDX ডিনামাইটের লড়াই। গান্ধী পরিবারের কেউ তার পেছনে থাকতে পারে, মীর সাহেবের পেছনে আছে। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন কি জন্য দরকার? কারণ জ্ঞানেশ কুমার হচ্ছে বিজেপির অলিখিত সভাপতি। কেন্দ্রীয় সভাপতির নাম নাড্ডা নয়, ওই বিহার থেকে যাকে করেছে সে নয়। আজকে বিজেপির নেতার নাম, বিজেপি নেতাদের জিজ্ঞেস করুন, তারা এখন মোদী সাহেবকে কিংবা তারা অমিত শাহকে গুরুত্ব দেন না, তারা জ্ঞানেশ কুমারকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কিন্তু জ্ঞানেশ কুমারকে তাড়া করে বেড়াবে কে বলুন তো? এই কালকে যে সংবিধান পাঠ করছি সেই সংবিধান তাকে কিন্তু কোথাও বাঁচতে দেবে না। তার কারণ ভারতবর্ষের সংবিধান অন্যায় একবার করে ফেললে সেটা কিন্তু চাপা থাকে না, সংবিধান তার পেছনে দৌড়। বিজেপি নেতা শ্রমিক ভট্টাচার্য তিনি বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলছেন যে আমরা আগে সতর্ক করেছিলাম যে এটা বিনা যুদ্ধে ভারতবর্ষ দখলে চক্রান্ত চলছে। ওনার হোম মিনিস্টারকে প্রথম আর ডিফেন্স মিনিস্টারকে রিজাইন করতে বলুন, তারপরে এই কথা বলবেন। এটা লজ্জাকর ব্যাপার যে বিজেপির সাংসদ হয়ে, রাজ্যের সভাপতি হয়ে তিনি বলছেন যে ওরা ভারতবর্ষকে দখল করে নেবে। তাহলে আমাদের হোম মিনিস্টার, ডিফেন্স মিনিস্টার কি করছে? হ্যাঁ, দিল্লি সহ বেশ কয়েকটি শহরে দূষণ খুব ভয়ঙ্কর মাত্রা ধারণ করেছে। তো রাহুল গান্ধীকে কথা দিয়েছিলেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট যে এটা নিয়ে আলোচনা। আজ তো একজন হয়ে গেল পার্লামেন্টের দূষণ নিয়ে কোনো আলোচনা। আরে দূষণ নিয়ে আলোচনা কি করে করবে? তার কারণ নিকম্বা সরকার বলেছিল ডবল ইঞ্জিন সরকার হলে করতে পারবে। তার কারণ হচ্ছে আপনাকে জানতে হবে, কাবাব বানাচ্ছে না দিল্লিতে, কাবাবের ধোঁয়ায় তো দূষণ হয়ে যাচ্ছে। মাছের বাজার বন্ধ করে দিলে দূষণ বন্ধ হয়ে যাবে। মাটন চিকেন বন্ধ করে দিলে দূষণ বন্ধ হয়ে যাবে। আজব এক পাগল সরকার এসে উপস্থিত হয়েছে ভারতবর্ষে। শুভঙ্কর, এর আগেও আমরা দেখেছি বাংলাদেশে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। যখনই কোনো অশান্তির ঘটনা ঘটে তখনই ওপার বাংলার সঙ্গে এপার বাংলার তুলনা করা হয়।
কিভাবে দেখছেন বিষয়টাকে? দেখুন, বাংলা একটা ভাষার জন্য একটা দেশ তৈরি হয়েছিল, আপনাকে ভাবতে হবে। এখন বিজেপি যে সরকারটা এসছে, এ তো বাংলার ওপরেই অসন্তুষ্ট। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে জেল খাটিয়ে দিচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করে দিচ্ছে, বঙ্কিম দাদা বলে বলছে। এখনই যদি বিজেপির আমি মোহন ভগবত দাদা বলি, দেখবেন আমার বাড়িতে পুলিশ চলে আসবে, সেন্ট্রাল ফোর্স চলে আসবে। এটা হচ্ছে অ্যারোগ্যান্ট একটি সরকার, ক্ষমতায় আছে। কিন্তু আপনাদের বলি, ডেমোক্রেসি এমন, যেটা কংগ্রেস তৈরি করেছে, এটা পাকিস্তান নয়। চক্রবৎ পরিবর্তনতে দুঃখা নিচ সুখা নিচ, এটাই হচ্ছে ইলেকটোরাল সিস্টেম। আজ না হলেও কাল সত্যকে দাবিয়ে রাখা যাবে না, যেটা রাহুল গান্ধী প্রত্যেক সময় বলছেন। আর ভয় দেখেও কাউকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। শেষ প্রশ্ন আবার, কিছুদিন আগে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস হয়েছে এবং আজকে দেখা যাচ্ছে যে বাবরি মসজিদের নামে টি শার্ট বিক্রি হচ্ছে। এই বিষয়টাকে আপনারা কিভাবে দেখছেন? এই জন্যই তো সংবিধান পাঠ করছি। সংবিধানে বলা আছে, একজন নাগরিক তার যা ইচ্ছে তিনি বলতে পারেন, যেটা রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে না। একজন নাগরিক তিনি তার মতো মত প্রকাশ করতে পারেন। আমরা তো চাই মত প্রকাশ করুন, তার মতো মানুষ কিনুন, তার মতো খাদ্য কিনুন, তার মতো খাদ্য খান, তার মতো তিনি ব্যাখ্যা করুন, তাকে যাতে কেউ না মারে। চিকেন প্যাটিস বিক্রি করতে গেলে কিংবা ভেজ প্যাটিস বিক্রি করতে গেলে, যে তুই কেন ভেজ বিক্রি করছিস, তুই কেন চিকেন বিক্রি করছিস, তুই কেন সালোয়ার কামিজ পরেছিস। এই ভারতটা বহুত্ববাদের ভারত। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, এ কোথাও পাওয়া যাবে না, হুইচ ওয়াজ এস্টাবলিশ বাই কংগ্রেস। আর 1952 সালে এই নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে জওহরলাল নেহরু ভারতবর্ষের মানুষকে দিয়ে গেছে, যেটা নিয়ে 2026-এ সংকীর্ণ রাজনীতির, বাইপোলার রাজনীতি তৈরি করার চেষ্টা করছে।